Okay, welcome class to today's session, and we'll be continuing our lecture on different inequalities and disparities which have been apparent in many cases in case of Pakistan, in which we'll be discussing on what is the level of disparity or inequality uh, in terms of different infrastructure, socio-economic development in the country. So, before we begin, I would like to revisit some basic concept behind disparities and inequalities. So, what is the difference between disparity and inequality? Anyone? Kindly raise your hand. Anyone? Yes, Ahmed. Sir, inequality is in terms of economy, while disparity is in terms of infrastructure or socio-economic growth, sir. So basically, most of the time, disparity is often measured in terms of physical, something which is physical, and inequality is usually in terms of economic. So, I hope you've gone through the study of the previous. I've given you case study and you've gone through it. I'll just revise and we can have some kind of discussion on it. So apparently, it is now seen that generally in all over the world in the literature that there is a big gap, development gap between urban and rural areas, and that is potentially caused by the accumulated wealth or political power in the capital cities or in the major cities of the country. So when there is wealth or power over there, so obviously that area would be developed more than compared to rest of them. And certainly people will start living in high density or like in urban areas. Governments tend to focus on providing facilities to them because providing any kind of facility is more efficient in urban areas than rural areas. So all of government, some of like their inclination is towards developing the urban areas more and more, because we have known that cities are engines of economic growth. So the more cities you have, better economic power you will have in the world. So that is a kind of dynamic which tends to make this urban areas more developed as compared to its counterparts. So there are different issues and regional issues as well, but it is always you can say for a sustained development, the inequalities or disparities must be minimum. So for a balanced growth, integrated, inclusive development, for all these things, urban and rural should be like all the level of development should be balanced between them. So now, obviously, attaining like 100% of provision of certain facility, like let's say talk about electricity, 100% uh, provision of electricity. So, do you think is it possible to have 100% people or 100% of the population they can be provided with electricity? Anyone? Yes, sir, Anyone? बिल्कुल. Yes, Hamza. Okay. So, what about any other facilities? Gas, सर water गैस supply. है तो फाइनाइट रिसोर्स है, लेकिन प्रोवाइड तो की जा सकती है सबको. Okay, access to. Lekin, okay, Hamza, ultimately, our ideal situation is 100% provision of certain facility to everyone. Okay, but that is not the case. 100% ho hi nahi sakti, because certain people they will be deprived. They will live in such location जहाँ electricity नहीं आती. यहाँ जहाँ उनकी sustained electricity नहीं आएगी. Let's say आपके कुछ slums हैं या आपके कुछ homeless people, let's say, there is certain amount or certain, you can say, um, part of the society, maybe 1%, maybe 0.5%, they will not have the facility. 100% attain karna is a target, but actually practically it's not feasible. So हम क्या करते हैं, we say that हम किसी एरिया में जब कंपैरिजन करते हैं, अब ये इनइक्वालिटीज या डिस्पैरिटीज बेसिकली क्या है, ये कंपैरिजन बिटवीन टू सर्टेन थिंग्स. तो हम जब इनको कंपेयर कर रहे होते हैं, सो आपके एरिया में लेट्स से हम कहते हैं
Okay, 100% because it's an ideal situation, and ideal situations is very rare, especially in social sciences. So हम इस तरह करते हैं कि हम लेट्स से आपके एरिया में हम कहते हैं कि relatively to all of this area हमारे पास लेट्स से 5 areas A B C D E F 5 areas हैं. इन पांचों में से जो हाईएस्ट डेवलप्ड होता है या ऐसी एरिया जहां मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एक्सेस ऑफ सर्टेन फैसिलिटी मौजूद है, लेट्स से वो सिटी ए है, उस सिटी ए की जो हाईएस्ट पॉपुलेशन लेट्स से वो है 95%. उस 95% को हम कह देते हैं दिस इज द हाईएस्ट अटेनेबल इन एन एरिया. तो उसके रिलेटिव हम ग्रेडिंग करते हैं, उसके रिलेटिव देखते हैं कि अदर एरियाज हाउ मच डेवलप्ड. सो दैट इज कॉल्ड kind of relative assessment, relative assessment of provision of different facilities. Right? Hamza, आपको समझ आ रहा है? Any question till now? Yes, sir. आपने शायद पेपर भी पढ़ा तो आप कुछ क्लियर भी होंगी कि why we take one as the highest. क्योंकि ideal situation बहुत मुश्किल है. So we always do relative grading. अब relative ये आप जिस तरह आप उस तरह समझे आपके जो CPA, GPA वगैरह है कि आपका अगर आपकी क्लास में हाईएस्ट स्कोर 100 में से 75 है तो उसको हम ए ग्रेड दे देते हैं, राइट? और 75 को कंसीडर करते हैं बेंचमार्क और उसके मुताबिक बाकी लोगों को जज करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव असेसमेंट. तो रिलेटिव ग्रेडिंग जिस तरह आपकी होती है, इसी तरह एनालिसिस में जब जाते हैं आपके कि अब एक एरिया में पाकिस्तान के पास इतनी इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज नहीं है या खास चीज के रिसोर्स नहीं है तो सबको वो प्रोवाइड नहीं कर सकते. लेकिन जहां उन्होंने मैक्सिमम प्रोविजन दी हुई है, लाइक 95% लोगों को वो चीज मिल रही है, तो इट मींस कि 95% बाकी एरिया में कम से कम 95% वो फैसिलिटी जरूर होनी चाहिए. अब इस फैसिलिटी से क्या मुराद है? नाउ दैट फैसिलिटी कैन बी काइंड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, रोड डेंसिटीज, आप के access to different like electricity, gas, access to infrastructural facilities या basic amenities भी कहते हैं हम इसको, utilities कह सकते हैं. So different dimensions में हम measure कर सकते हैं इस development को. So now coming back to the point, हम rural urban की बात करते हैं, there is of course there is a huge gap between them. और uneven जब balances या disparities होगी तो people will tend to move toward urban areas. तो जो urban area which is already kind of they have experiencing very high pressure of provision of they have certain demands and the governments are like these demands are instigating some kinds of pressures of the government to provide certain facilities. तो urban area जहां पहले ही इतने ज्यादा आपके पास गवर्नमेंट पे लोड होता है to provide facilities to the citizens, और माइग्रेशन से ये और एनहांस हो सकती हैं, और जिसकी वजह से आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दे कैन फेल इन प्रोवाइडिंग इतने परसेंट लोगों को ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करने में मुश्किल होगा उनके लिए. ओके, सो नाउ अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ आवर फोकस्ड ऑन इनकम इनइक्वालिटीज. लाइक फॉर एग्जांपल a very good statistics which is of 2010, I could not find a latest reference for that it's nominal average GDP of Punjab is 1300 per capita. Okay, I think it's yearly, yeah, right. Okay, 1300 per capita, but in Lahore it was around 5000. So this shows you a bit of a gap of a disparity कि पूरे पंजाब का इतना है लेकिन इस एरिया का इतना ज्यादा है. So it means that Lahore is very much developed. So back end पे हम बात करते हैं कि हमारे पास resources होते हैं, हम क्या करते हैं, we tend to allocate so much resources for the urban because it's more efficient to provide facilities to them as compared to rural. Okay, so हम इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं. In revisiting Pakistan policies, that Pakistan हम कहते हैं is a agrarian country. Now we are also sometimes referring it to agro-industrial country as well. So उसमें हम कहते हैं जी हम urban और rural को करते हैं, लेकिन technically rural areas are deprived of certain facilities. Rural areas में सिर्फ एग्रीकल्चर को तो प्रमोट करते हैं, एग्रीकल्चर के अलावा कुछ नहीं प्रमोट करते. ओके, नाउ एक प्रोविंशियल लेवल पे हमें ओवरऑल लेवल पर हमें इतना ज्यादा गैप डिस्पैरिटी ज्यादा नहीं नजर आती. पंजाब, ओवरऑल सिंध, ओवरऑल केपी के. ओके, बलोचिस्तान आई वुड से दैट इट इज डिप्राइव्ड और अंडर प्रिविलेज्ड
जिसकी वजह से उनको असेस नहीं है, लेकिन अदर प्रोविंसेस उनका मोरल डिस्पैरिटी नहीं है। लेकिन हम जब प्रोविंस के अंदर जाके चेक करेंगे तो यस देयर इज सम डिस्पैरिटी एंड विल गो इनटू दैट इन डिटेल। ओके, दिस इज अगेन पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट प्लान सिस्टम है उसमें ये कहीं फोकस्ड और कहीं नहीं फोकस्ड। ओके, देयर आर सर्टेन स्टडीज व्हिच ट्राई टू टारगेट disparities in terms of let's say education, in terms of health indicators, social indicators, human development index, and quality of life, social well-being. So there's some different indicators. So today we'll be talking about the case study which I gave you, is the spatial temporal dynamics of city region. Yes, Rida. सर मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन इस पर था कि सर एक तो हम इधर से बात करते हैं कि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है वर्ल्ड में, ठीक है, उसकी वजह से मतलब हमारी क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, मतलब हमारी ओजोन लेयर वो डिप्लीट हो रही है एंड ऑल दिस थिंग। एक एस्पेक्ट ये है कि हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी हम नहीं अचीव कर पा रहे। दूसरी बात पे सर फिर हम ये बात भी कहते हैं कि हम लोग रूरल एरियाज भी हैं तो उनको भी डेवलप करें। तो सर उनको डेवलप करने से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्या मतलब है, लाइक उनको भी हम अर्बनाइज कर दें, मतलब अगर तो उधर भी हम फैसिलिटीज सारी प्रोवाइड कर दें, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस और सारे जो मतलब हैं जो लैंड यूजेस जो अर्बन एरियाज में होते हैं, तो सर इसका मतलब है कि हम उनको भी अर्बनाइज करें। तो सर इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हम किस तरह से उनको डेवलप करें। हाँ अदिता, वेरी गुड पॉइंट, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। यस, अब डेवलप्ड से मुराद हम कहते हैं कि कोई एरिया डेवलप्ड हो तो हम कहते हैं वो अर्बनाइज्ड है। जो वर्ड डेवलपमेंट का वर्ड अनफॉर्चुनेटली हम एज्यूम करते हैं, ये जो हम समझते हैं डेवलप का मीन्स अर्बन एरिया। इट डज नॉट मीन कि ठीक है स्पेशलाइज्ड लाइक यूनिवर्सिटीज मे बी कार्डियक हॉस्पिटल्स, मतलब के आपके कैंसर के हॉस्पिटल्स, नाउ दीज आर सम स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस व्हिच बिलोंग इन द अर्बन एरियाज। मैं आई एग्री विद दैट, बट प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, रूरल को भी 100% मिलनी चाहिए जहां भी लोग रह रहे हैं रूरल में, और अर्बन को भी मिलनी चाहिए। इस डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूं। गैस अगर अर्बन एरियाज वालों को मिल रही है तो रूरल वालों को भी मिलनी चाहिए। क्लियर हो रहा नहीं था आपको? कुछ बेसिक फैसिलिटीज हैं लाइक एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन, आपके ख्याल में सिर्फ अर्बन वालों को ही मिलनी चाहिए? नहीं, ये रूरल वालों का भी हक है। जी जी ठीक है जी सर, जी मेरा दादा। थोड़ा सा ये था कि सर अगर हम ये सारी चीजें अगर मतलब एजुकेशन फैसिलिटीज प्राइमरी स्कूल्स वगैरह अगर हम प्रोवाइड कर दें रूरल एरियाज में ना, और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर दें, गैस भी प्रोवाइड कर दें, स्टिल सर अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग फिर भी सर अर्बन एरियाज में जाते हैं। स्टिल वो ये कहते हैं कि जो रूरल एरियाज हैं वो डेवलप नहीं है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो सर इस चीज में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि वो डेवलपमेंट को वो देखते ही उसी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि देखिए उधर ना, वो चीज। देखिए अगर आप बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो ओके, टू सम एक्सटेंट आई कैन रिलेट विद दैट। लेकिन उसके अलावा जो बेसिक सर्विसेज की हम जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट शुड बी बैलेंस्ड, दैट शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन। चले अगर आप कहते हैं अर्बन एरियाज की बात कर ले, मैं तो आपको चलो पर ये अर्बन के तो हम बात की बात करते हैं। लेट्स से जो लाहौर में फैसिलिटीज हैं वो क्वेटा को मिल रही हैं, वो भी अर्बन एरिया, क्वेट लाहौर भी है। या जो लाहौर में जो अर्बन फैसिलिटीज मिल रही हैं वो रावलपिंडी में क्यों नहीं है, वो मुल्तान में क्यों नहीं है, वो भी अर्बन एरियाज हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं बैलेंस्ड हो, इक्वालिटी हो। ठीक है, जब बैलेंस्ड होगी तो आपकी जो माइग्रेशन होती है, इसका ये दैट इज अ नोन फैक्ट दैट इनइक्वालिटी रिड्यूसेस माइग्रेशन फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। ऑफ ठीक कोर्स है अपॉर्चुनिटीज के लिए आई नो आपको कहीं भी जाए मूव करें शहर के अंदर, लेकिन आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, डेवलपमेंट लेवल एक होने चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड वेदा। Yes, sir. Got that, sir. Thank you. Okay, great. Okay, so coming back to today's again the case study. तो इसमें हम डेवलपमेंट को किस तरीके से देखते हैं? हम डेवलपमेंट को 3-4 तरीकों से देख सकते हैं। सोशल, इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, जनरली हम कई फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी वर्ड यूज कर लेते हैं क्योंकि दैट इज वेरी मच इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी उसकी सोशल कंडीशन भी बेहतर होगी। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें, फिजिकल डेवलपमेंट कह लें। So again, the word infrastructure is conceptually different in different disciplines. So here we tried to assess
development gap between urban, rural, or peri-urban. Clear? And the impact of हमने ये भी सुना हुआ है कि जहां रोड बिछा दें या जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दें, उस एरिया की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर हो जाएगी. हैव यू हर्ड अबाउट दिस? कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाएं, सोशियो इकोनॉमिक लोगों की वेलबींग खुद ही बेहतर हो जाएगा. अब टू व्हाट आपका ख्याल में ये does it sound okay or is it like flawed? Anyone? Impact of infrastructure on socio-economic development. Yes sir. जी सन. जी यस सर. ये तो एक लाइक वो समझेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस चीज़ के कि जिस साइड पे लाइक रोड्स अच्छी होंगी, सब कुछ अच्छा होगा, फैसिलिटीज अच्छी होंगी, तो वो ही उस साइड का जो सोशियो इकोनॉमिक जो बिहेवियर है वो भी लाइक वो इफेक्ट करेगा उस एरिया पे. Okay, that's fine. Yes, that's logical. Yes, Salia. So to some extent it is true because आपको रोड नेटवर्क्स चाहिए होते हैं कोई भी फैसिलिटी कहीं तक लेके जाने के लिए. आप ऐसी स्कूल या कुछ भी बना नहीं सकते. You need road infrastructure to travel and get to one place. Okay, one more thing. Infrastructure is not only road. Okay. Yes, Dishan, you want to say something? Okay. So let's go back and let's talk about. I don't think I'll go into the delineation of city-region boundaries. If you're going through the paper, you can. The main point is that urban, rural, and peri-urban. Yes, Khushbakht. I can't hear you. Okay, Khushbakht, I can't hear you. So okay, maybe check your mic and can ask again, or just type a question in the text and I'll try to answer it. Okay, so main problem, the issue with us is that first of all we are going to be comparing urban, rural, and peri-urban. Okay. Now the first question arises is how do you define urban, how do you define peri-urban, and how do you define rural? So we'll go into it as well in detail. And then what kind of policies were during the time period. We are also doing some kind of spatial and temporal analysis in which we are talking about in which time period what was the value of certain facility. So usko hum temporally or spatially compare karenge, and then we will link it to the policies कि उस जमाने में किस गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लॉन्च की थी, क्या उसने डिस्पैरिटी या डेवलपमेंट इनइक्वालिटी कम की है या ज्यादा की है उस दौर में. So we will talk about some socio-economic indicators and we will develop an overall index and identify the development gaps between them. Okay, so the study which I gave you was quantitative in nature. It was comparative, secondary data-based, indicator-based, index-based. And sub-district or the C level was the data, smallest data used. Okay. These were the indicators for socio-economic development. Okay. So like Rida was questioning, do you think that the same indicators which are in urban areas should also not be in the rural area? So in my opinion, that rural area deserve the same opportunities, same facilities as urban citizens. So these are some socioeconomic indicators. So any question about these indicators? Anyone? If they're not clear about these indicators. Yes, there's one. सर एडल्ट लिटरेसी रेट का बता दें 15 इयर्स और ओल्डर वाले. हाँ, तो इसका ये मतलब है कि रूरल एरियाज में क्या लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं. आमतौर पे लिटरेसी रेट ऑफ कोर्स अर्बनाइज एरिया में ज्यादा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रूरल वाले को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए. सो अडल्ट लिटरेसी रेट इन परसेंटेज मींस कि कितनी परसेंटेज अडल्ट पॉपुलेशन 15 इयर्स एंड ओल्डर जो पढ़ सकती है, पढ़ लिख सकती है. दैट इज कॉल्ड अडल्ट लिटरेसी रेट इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान डेफिनेशन.
तो इतने परसेंट अर्बन में पढ़े, लाइक से 95 अडल्ट्स पढ़े लिखे हैं और रूरल में 65%। सो क्या हो गया, 65 और 90 के दरमियान जितना गैप है, दैट इज अ डेवलपमेंट गैप। कि रूरल का मैं नहीं कह रहा 100 कर दो, लेकिन कम से कम 90 के तो करीब होना चाहिए, 80 तो होना चाहिए, 85 हो जाना चाहिए, लेकिन करीब होना चाहिए। इतना बड़ा गैप नहीं होगा। जितनी परसेंटेज गैप ज्यादा होगा, द मोर इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी। नहीं, मेरा मतलब ये सर कि लाइक 15 इयर्स का जो ये इन्होंने लिया इंडिकेटर के तौर पे, ये किस बेसिस पे, यानी ये या तो वही बात है कि मैट्रिक के तौर पे कि 9-10 जिसने किया उसको हम एज वो मानते हैं। गवर्नमेंट की डेफिनेशन है अडल्ट की, क्या लिटरेसी की क्या डेफिनेशन है, जो लिख पढ़ सकता है, दैट इज आवर गवर्नमेंट की, दिस इज आवर ऑपरेशनल डेफिनेशन, दैट इज। तो उसको हम 15 साल को अडल्ट कंसीडर करते हैं गवर्नमेंट, 15 से नीचे को चिल्ड्रन करते हैं। Secondly, these indicators are based on the indicators extracted from the government reports. जो development statistics थी या आपकी जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं, उनसे ईयरली डाटा लिया हुआ। Yes, Samad, you had question? Yes, sir. I was asking about the indicators, sir. The difference in the indicators, like some indicators are in percentages while the others are in numbers. तो सर ये नहीं होना चाहिए कि एनालिसिस के लिए या सारे परसेंटेजेस में हो या फिर सारे नंबर्स में हो। Yes, very good point, Samad. So इसके लिए consistency के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं in which we convert all of our value from 0 to 1. I'll go into the detail, जिसको हम इंडेक्स कहते हैं कई दफा, जिसको हम 0 to 1 कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम कन्वर्जन करेंगे, परसेंटेज की वैल्यूज या जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो 0-1 के दरमियान आ जाएगी। 1 विल रिप्रेजेंट द हाईएस्ट वैल्यू एंड 0 विल रिप्रेजेंट द लोएस्ट वैल्यू। सो 0 को हम किसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं, पहले डेटा स्टैंडर्डाइजेशन लोग कहते हैं इसको, नॉर्मलाइजेशन का वर्ड यूज करते हैं। सो दैट इज यूज्ड टू change all your indicators or your values into a consistent scale. Clear, Samad? Clear hua? I'll go into it in more detail later. Yes, thank you. In methodology. Okay, so now talking about some social infrastructure indicators. These are your infrastructure. I mean, in this case study, they took different indicators to measure the infrastructure. So, of course, road density is a part of it. Access to school, electricity, gas, water, and sanitation. Okay, so that also इनको ऐड करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू मेजर करेंगे। समझ का सवाल था कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया, बिकॉज क्योंकि वो कुछ परसेंटेज में है, कुछ वैल्यूज हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं जिससे हमारी सारी वैल्यूज 0 to 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। दैट इज कॉल्ड डेटा नॉर्मलाइजेशन, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन। एंड देन we rank it, we like kind of categorize these values. Let's say 0 to 1 है, तो हम कह सकते हैं 0 से 0.25 are low developed, 0.25 to 5 are moderately developed, 0.5 to 0.75 is highly developed, and 0.5 to 1 is very highly developed. So हम ये data classification का method होता है. In the next lecture, I'll give you an overview of different type of data classifications. Okay, then GS was used to visualize the results and the time periods. These are the time periods: 2002, 7, 7 and 12. So 3 time periods: 2002, 7 and 12. And then implications case is फला policy ने इस पे असर डाला कि नहीं डाला. Now, one more thing in case of Pakistan is when we are going through different indicators, we are extracting is हमारे indicators consistent नहीं है. 2002 में जो इंडिकेटर यूज हुआ है 7 में नहीं यूज होगा, 12 में यूज हुआ होगा. तो जो आपको स्टैंडर्ड, अब नाउ इसमें जो इंडिकेटर्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स आपके ख्याल में बड़े इंपॉर्टेंट थे जो मैं मिस कर गया, लाइक इंटरनेट, PTCL लैंडलाइन connection. Now these are some important indicators for infrastructure development as well, but because they were not consistent or not available according to these three time periods, these indicators had to be dropped. In Pakistan में हमें भी अक्सर करना पड़ता है एनालिसिस में कि lack of data या missing data की वजह से हमें drop करना पड़ता है. So that is another problem in case of Pakistan में जब analysis करें. Okay.
this is the method for classification and transformation. So no need to go into detail for today. And I will not talk about the city, how I define the city region boundary of law 1. Okay, the question here arises कि आप urban, peri-urban और rural को कैसे classify करेंगे? I don't know, maybe I've talked it in the class as well, in which there are different measures to identify what is urban, what is rural. So according to different literature reviewed, these are the criteria which we can be used to classify any area into urban or rural areas. Now these are, again, I'm telling you, these are not standard. This is a, you can say a consistent criteria to evaluate for this research, but on ground, आप भी change भी कर सकते हैं. Criteria, it's not standard, but it's still acceptable that these indicators can be used. Clear? And these, अच्छा, अब यहाँ से peri-urban कैसे पता चलेगा? Anyone? Anyone? Yes, Vimra? Sir, could it be if we try to figure out the belt which is between the urban and the rural? Okay, that is a very good definition of, but based on the data. Yes, Rizwan? Sir, I think urban की जो lowest value होगी वो. Okay. Let's say this criteria is if any area which fulfills the all conditions, if all, इन चारों criteria को meet कर रहा होगा, let me. Okay, any area which meets this criteria, any area which meets all the 4 indicators will be classified as urban. And any area which meets these 4 indicators, that will be rural. But certain areas which will have 2 indicators from rural, 2 from urban, that will be termed as peri-urban. Any indicators which fulfills all these 4 will be urban, and any area which fulfills all the 4 indicators will be rural. And any area just, let's say, 2 out of 3, 2 out of 4, 1 out of 4, जो meet कर रहा है, that will be peri-urban. So अगर हम उसको visualize करें, उन areas को हम, ये तुम्हारे पास data था, data के ऊपर हम classify करें, तो urban planning के point of view से या regional planning के point of view से that holds true, because after urban areas, those immediate surroundings is peri-urban, and after peri-urban, the rural area starts. So from planning definition, that peri-urban lies at the outskirts of urban areas is peri-urban, and that is holding true for this analysis. Clear? Any question till now? Peri-urban का पता चल गया? Anyone who's still unclear about peri-urban? Okay. So this is now disparity, year-wise disparity. In 2002, 7 and 12 in these areas, and that tells you the disparity. Now, green is representing highly developed, light green is representing moderately developed, yellow is like just developed, and least is, you can say, least developed. Orange is your, red is your least developed. So this tells you a picture that your southern side of the city region or the western side is least developed. Now this is relative to the highest values. This is relative grading. Same goes for socioeconomic. If you visualize the same indicator which I posted, which showed you in the previous slides, some different indicators of socioeconomic, if we overlay it, and then we can find out that which areas are socioeconomically developed or not.
and this is combined, like infrastructure plus socioeconomic. So overall regional development, overall disparity or gap between two sort of things. From here you can see that of course Lahore is the most developed compared to the rest of the city region. Yes, Alia. Sir, जब I saw these maps, I wanted to ask कि we saw कि 2007 में there was still southern side पे आपकी regional disparities जो थी वो moderately developed में कहीं कुछ regions में आ रही थी. Why was it कि 2012 में suddenly a lot of it changed? Okay, good point. Okay, so what happened Saleh basically is कुछ areas की either values, let's say again I'll take the mark. Okay, so probably आप इसकी बात कर रहे हैं इन areas की जो साउथ में है. Okay, so what happened is that जो आपके अर्बन एरियाज हैं, जो आपका बाकी एरियाज थे उनमें डेवलपमेंट होगी और बाकी साउथर्न वाले में उतनी उस लेवल से रेज नहीं हुआ डेवलपमेंट, तो गैप बढ़ ज्यादा हो गया. वी आर टॉकिंग अबाउट गैप. सो व्हाट हैपेंड कि अब जो हायर टियर था वो और डेवलप्ड हो गया, जिसमें हम कहते हैं अमीर और अमीर हो गया, गरीब उतना ही गरीब रहा या उससे और ज्यादा गरीब हो गया. सो दिस इज व्हाट हैपेंड, दैट इस ये बेसिकली गैप बता रहे हैं. So there is also this point कि 2007 में there are some places जो कि southern side पे अंदर वाली side पे are in darker green, they're highly developed. But when we notice them in 2012 वाले map में they're no longer उस तरह के highly developed centers. और even तो yes sir मेरा sir why did that happen कि they were developing so well, वो progress करे थे but they didn't later on. Yes. How did that happen? Okay. So उसके लिए तो हमें let's first of all हमें identify करना पड़ रहा है, जो हमें स्टडी भी identify करके दे रही है. ये स्टडी भी हमें identify करके दे रही है कि these areas could not be developed. These areas like this is Faisalabad, Chak Jhumra. I think this is you are pointing out, right? These areas. Yes sir. So I think these are the areas you are talking about, right? Yes. उन्होंने 2002 से 7 में 12 किया 12. Now these are ये फैसलाबाद की तहसीलें हैं या टाउन्स कह लें आप. So what happened कि इन्होंने 2002 में जो वैल्यूज थी और 2007 के दरमियान इन्होंने डेवलप किया. These are again I'm telling you relative assessment. So relative में क्या हुआ, हो सकता है लाहौर के जो पहले जिस यहाँ लाहौर का एक लाइट ग्रीन नजर आ रहा होगा कुछ सेंटर में, वो डेवलप कर गया. उसके अलावा भी लाहौर डेवलपमेंट से आइडियल की तरफ जाता जा रहा है. 100% तो नहीं कर सकता अचीव, लेकिन पहले मे बी 90 था, अब 95 कर गया. लेकिन चक झुमरा, अब मुझे वैल्यूज देखनी पड़ेंगी टू बी फ्रैंक. अब वैल्यू चक झुमरा ने या तो उस लेवल वो यहाँ से 60 से जंप मार के 70 पे आ गया, लेकिन अब वो 71 पे या 72 पे रुका हुआ, जबकि लाहौर 90 से 95 पे निकल गया. तो वो क्या, जब रिलेटिव गैप बढ़ जाएगा तो उसको हम कलर डिनोट करेंगे. तो ये रिलेटिव ग्रेडिंग हुई भी है, रिलेटिव क्लासिफिकेशन हुई भी है. सो प्रोबेबली उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी तेजी से नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था. अब पॉइंट आता है आपके वाली बात, क्यों नहीं बढ़ा वो, उसके लिए हम चक झुमरा में जाके देखेंगे क्या फंड एलोकेट हुआ था, उनको नहीं हुआ था, उस लिहाज से इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, डाटा कलेक्ट किया कि नहीं किया, इशू क्या है, वो फिर हमें केस स्टडी या लेट्स बड़ा माइन्यूट लेवल पे या डिटेल लेवल पे जाके पता करना पड़ेगा कि इस एरिया में डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई. पॉलिटिकल रीजंस थी, फाइनेंशियल इश्यूज थे, टेक्निकल मैन पावर नहीं थी, कोई प्लानर नहीं था, कोई विजनरी बंदा नहीं था, लीडरशिप नहीं अच्छी थी. सो दिस ऑल फैक्टर्स कम इनटू प्ले. तो हम उसका फिर एक एरिया में जाके एनालिसिस करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट इज द प्रोबेबल रीजन दैट दिस एरिया इज लेफ्ट बिहाइंड.
Clear, Salia? Okay. Again, now these are some statistical tests in which you identify gaps between different areas. So on the lump sum, I'll just tell you that this significant value means that there is a change. Within just negative, this values tell, and if it's star, it means that there is a change in which urban areas may development हुई है. For quantifiable purposes हम कह सकते हैं कि a value of 4 की इंक्रीमेंट हुआ है. रूरल एरिया में देखें रिलेटिव टू रूरल, विद इन रूरल में बहुत डेवलपमेंट हुई है, पेरियर में डेवलपमेंट हुई है. अर्बन और विद इन अर्बन एरियाज डेवलपमेंट लेवल कम हुई है, इतनी तेजी से नहीं हुई जितनी रूरल्स में हुई आपस में. रूरल में गैप कम हो रहा है तेजी से, अर्बन में इतनी तेजी से कम नहीं हो रहा है, लेकिन चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है अर्बन में, लेकिन उतनी रिलेटिव नहीं हो रही जितनी विद इन रूरल हो रही है. तो इट मींस कुछ रूरल एरियाज इतने पुअर है कि उनमें बहुत रैपिड थोड़ी सी भी चीज प्रोवाइड करें तो बहुत रैपिड चेंज आएगा. तो ओके, हम उससे लेट्स से इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं. और दिस इज वैल्यू ऑफ वेरिएंस, ओके, इन परसेंटेजेस. वेरिएंस मीट के लेट्स से स्टैंडर्ड डिविएशंस आपस में कितनी इसमें गैप्स हैं विद इन एन इंडिकेटर. सो विद इन एन इंडिकेटर जो मैंने शुरू में आइडेंटिफाई किए थे हर इंडिकेटर, तो हम विद इन एन इंडिकेटर भी एनालिसिस कर सकते हैं, ईयर वाइज और अर्बन वाइज भी. ईयर वाइज, टेम्पोरली, स्पेशली और इंडिकेटर वाइज. आपको मैं पहले जो बता रहा हूँ ओवरऑल ग्रुपिंग करके बता रहा हूँ सोशियो इकोनॉमिक की, इंफ्रास्ट्रक्चर की. सो वेरिएंस इधर देख लें कि हम देखेंगे X11 let's say I'll go back to slide number and 2 3 4 fifth indicator of socio-economic, that is the showing highest value of variance. इसमें सबसे ज्यादा गैप है. So हमारी फिफ्थ वैल्यू थी 1 2 3 4 5 हॉस्पिटल बेड्स, राइट. सो हॉस्पिटल बेड्स की सबसे ज्यादा वेरिएंस है in this area, in this year. So इंडिकेटर वाइज वी कैन हैव एनालिसिस कि कौन से इंडिकेटर्स में हम पूर परफॉर्म कर रहे हैं. सो ये जो हमारे देखें अगर 100 की वैल्यूज हैं कि यहाँ वेरिएंस बहुत ज्यादा है, हो सकता है ये कि हमारी एक्सक्यूज ओके. सो हमें ये चेक करना पड़ेगा हॉस्पिटल की वेरिएंस क्यों ज्यादा है. अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा बेड्स दे दिए गए हैं, बाकियों में नहीं दिए गए. सो वी कैन वैल्यू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल इंडिकेटर एज वेल. सो वेरिएंस वैल्यूज tells us the level of development gap. Okay, अब बात आती है हमारी पॉलिसीज की कि अब हमें वेरिएंस से पता चल गया कि जी अर्बन एरिया में 2002 में अर्बन एरियाज में ये वैल्यू थी. लेट्स कंपेयर इट लाइक दिस. हमारा लेट्स से पेरी अर्बन में पेरी अर्बन देखें, ये वाली वैल्यूज, ये वेरिएंस कम हुई है हमारी पेरी अर्बन में, स्पेशली इस इंडिकेटर की देखें. इंडिकेटर X2 की देखें कि 2002, 7 और 12 में वैल्यू कम हुई है. अब हम देखते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिकेटर नंबर 2 कौन सा था. परसेंटेज ऑफ पीपल ओनिंग द हाउस, sorry this one, people access to school, secondary school. Okay, so हमारी वैल्यू सबसे ज्यादा वेरिएंस कम हुई है इसमें. तो इट मींस कि कोई स्कूल की जो पॉलिसी या प्रोग्राम चल रहा था in 2002, 7 and 12, they have been partially successful. I'm using the word partially because एक इंडिकेटर पूरी पॉलिसी को जज नहीं करता. So I can say partially successful according to this indicator. Okay, if I say according to this indicator, the policy, education policy which was launched in the peri-urban areas during 2002, 7 and 12, it has been successful in reducing your development disparities. Clear? Anyone? Clear नहीं हो रहा तो now is the time. या आपके सवाल में कुछ सवाल आ रहा है, it's fine, there is no dumb questions, so please.
उसके लिहाज से हमने एनालिसिस किया तो बताया कि जो हमारी 98 की 2010 की पॉलिसी थी विद रिस्पेक्ट टू अडल्ट लिटरेसी रेट वाला इंडिकेटर, जिसमें ने जो पॉइंट आउट किया था, दैट हैज बीन सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग योर डिस्पैरिटी. Water supply, yes, it has reduced disparity. Sanitation plan, these programs are now extracted from your national 5-year या annual development plans. वहां से ये प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट किए गए हैं कि उस साल में उस ईयर्स में कौन सा प्रोग्राम चल रहा था. Like खुशहाल पाकिस्तान scheme was launched in 2000. It was for road development. So उसमें अर्बन एरिया में तो डिस्पैरिटी कम कर दी है विद इन अर्बन, लेकिन रूरल में, पेरी अर्बन में, ओवरऑल लाहौर में, सिटी रीजन में वैल्यूज एनहांस कर गई हैं. So that program with respect to road development was enhance your inequalities or disparities. This program has not been successful. In the same program which provided electricity, yes, it has reduced your disparities, inequalities. Gas provision, mixed effect. तो यहाँ से जो अर्बन का आपको ज्यादा नजर आता है, इसमें इट मींस के ये पॉलिसी वाज गेयर्ड टुवर्ड्स अर्बन एरियाज में ज्यादा इस पे काम हुआ. Again, food support program in this era, which has reduced disparities. Tameer Pakistan for education purposes, according to this indicator, this program has been successful. Again, ESR education sector reforms आए 2009 में, उसने क्या इम्पैक्ट किया. हम इस तरह एक पॉलिसी का evaluation कर सकते हैं. Well, it might not be 100% true, but according to our indicator, it might point towards a success or a failure of a policy. Like this one, Prime Minister 1 million house for low income, back in 2012, 7-12 में जो launch हुई थी, उसमें urban areas में तो ये house ownership improve हुई है, लेकिन rural में नहीं हुई, according to our data. And food support program again. So this was policy analysis. So I've talked about that is my partially reflect your overall. So again, अगर हम बात करें जी, जैसा सालिया ने भी कहा था कि हम कैसे पता चलेगा, we need more data, more comprehensive data, more you can say consistent data, जिसमें हम एनालाइज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इवन कौन सी गवर्नमेंट, कौन सा लीडर, कौन सी टीम ने अपने एरिया में डेवलपमेंट की. नाउ ऑल दिस डेटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट सोर्सेज. लोग ये भी आर्ग्यू करेंगे जी गवर्नमेंट ने डाटा दिया, गवर्नमेंट के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी को जज कर रहे हैं, तो ये तो आप मतलब कि ये सही नहीं है, बट स्टिल हमने कहीं से स्टार्ट तो करना है. सो द डेटा इज ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट से, और उन्हीं के ऊपर हम एवेल्यूएशन करके उनको बता रहे हैं कि आपके डेटा के मुताबिक ये काम आपने सही किया, ये काम आपने गलत किया. यस रिजवान. अच्छा सर, जब मुझे बताएं कि ये एनालिसिस लाइक किस तरह ठीक होगा, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हम लोग इसकी रिलेटिव एक किस्म की टाइप ऑफ रिलेटिव ग्रेडिंग है, ठीक है, और अगर हम देखें तो डेटा के लिहाज से जो हम लोगों को डेटा अगर मिल रही है तो हो सकता है लाहौर के किसी पार्ट में, या लाइक अगर सिटीज की बात की जाए, लाहौर में अगर डेवलपमेंट हो रही है या लाहौर के लिए ज्यादा फंड्स रिलीज किए गए हैं और दूसरे शहर के लिए कम फंड्स रिलीज किए गए, इस तरह तो रिलेटिव डाटा में तो कभी लाइक हमारे पास तो सही वो नहीं आ पाएगी, रिजल्ट तो हमारे पास सही नहीं आएगा. अच्छा देखें, हमने जो इंडिकेटर्स लिए हैं, जो इंडिकेटर्स देखे हैं, हमने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया किसको रिसोर्सेज कितने मिल रहे हैं, हमने फाइनेंशियल एनालिसिस तो किया ही नहीं है इसका. हमने बात की है कि कितने लोगों को, पॉपुलेशन को ये फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, या इस एरिया में ये चीज है या नहीं, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही. बैक एंड पे अगेन आपकी बात है, डाटा जब आएगा हम तो ये भी एनालिसिस कर सकते हैं. So, जो रिलेटिव ग्रेडिंग है वो है लाहौर को, लेट्स से अगर हम कहते हैं आइडियल है, तो लाहौर को हमने 1 कर दिया और लाहौर के 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ले आए. तो हम चाहते हैं लाहौर की इवन 90-95% होगी, 100 वो भी नहीं होगी, लेकिन क्या है कि उस 1 को अचीव करने के लिए हमने जो 90 को 1 में कन्वर्ट किया, 90% को 1 में कन्वर्ट कर दिया, और बाकी की लेट्स से 45 था, 65 था, उसको जब कन्वर्ट किया तो वो वैल्यू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली 0.4 0.5 हो गई है. हमने जो 0.5 और 1 के दरमियान गैप है वो कम करना है.
हो सकता है पाकिस्तान में हाईएस्ट अचीवेबल ही 95% हो, इससे ज्यादा अचीव हो ही नहीं सकती, लेट्स अज्यूम। तो हमने तो करंट सिचुएशन लेना है। मैंने आपको पेपर तैयार करके दिया, लेट्स से वो पेपर की एग्जांपल देता हूं। मैंने एक सवाल दिया है, इतना टफ सा किसी से नहीं हो सका, तो हाईएस्ट मार्क्स इतने हैं, 100 में से 90 है, तो मैं वो 10 वाला क्वेश्चन निकाल दूंगा, चलो 90 इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू विच कैन बी अचीव्ड बाय द क्लास। सो 90 को मैं कह दूंगा ये 1 है, ये 100% है 90 वाले को, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली सबकी ग्रेडिंग करूंगा। क्लियर हुआ इस बार? सर जरा सी कंफ्यूजन है, लाइक मेरा कहने का मकसद है, बेशक आप फंड्स की ना बात करें, इलेक्ट्रिसिटी या दूसरी किसी चीज को भी हम एज एन इंडिकेटर के तौर पे ले लें, तो उस लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि अगर जिस तरह रूरल एरिया में अगर उस चीज की डेवलपमेंट नहीं की गई, ठीक है, लेकिन अर्बन एरिया में उस चीज की गई है, तो क्या ये चीज रिलेटिव के जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो ये चीज गलत नहीं आएगी? जिस तरह हमारी अभी जो वो पीछे से फिगर्स वगैरह थी, ठीक है, उस लिहाज से हम कंपेयर करें, तो क्या ये हमारा एनालिसिस गलत नहीं आएगा? अगेन मुझे आपके शायद पॉइंट समझ नहीं आ रहा, किस लिहाज से गलत आएगा? हमारा इंडिकेटर तो हमारा इंडिकेटर है पर जी जी स्लाइड से एक मिनट पीछे कर, वो जो फिगर्स वाली थी फिगर्स, ये वाली नहीं, वो जो अभी आपने दिखाई है वो रीजनल वाली जो थी। हाँ ये चलिए ये देखें। अब लाइक हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, क्या नाम है कि जिस तरह कोई भी लाइक अगर हम सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के बारे में बात करें कि 2000 में उसकी मॉडरेट डेवलपमेंट थी, लेकिन अगर हम लोग उसी सोशो वही एरिया अगर हम चेक करें जाके, अगर हम 2012 में चेक करें, जिस तरह सालिया ने कहा कि लाइक डिफरेंस आया, शो हुआ है, तो मेरा मतलब ये है कि ये हमने सारी रिलेटिव डाटा पे बेसिस पे, रिलेटिव हमारी इस पे थी ना, ठीक है, लेकिन हम इस चीज से फिर ये एनालिसिस निकाल सकते हैं कि हो सकता है कि लाइक एक पार्ट में जो भी जिसमें लाइक थोड़ा कोई भी पार्ट हो सकता है, ठीक है, उधर हम लोगों ने उस चीज की हम लोगों ने ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ ना किया हो, और क्या नाम है जो जिसमें लाइक पॉजिटिव चेंज आया जिसमें भी आया, तो हम लोग हो सकता है उसमें हम लोगों ने ज्यादा डेवलपमेंट शो की हो। क्या ऐसा है? यही बात है, हाँ बिल्कुल रिजवान। अगर हम किसी एरिया में भी डेवलपमेंट ज्यादा करें और किसी एरिया में डेवलपमेंट ना करें, ये गैप को चेक कर रहा है, हम गैप चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ एरिया में हमने एक एरिया में डेवलपमेंट कर दी, वो वैसे इतना आगे निकल गया कि बाकी पीछे रह गए, तो ये इनइक्वालिटी है, डिस्पैरिटी है। हम चाहते हैं कि ये सारे ग्रीन ग्रीन हो, इसमें गैप ज्यादा ना हो सारे। अच्छा, अगर हाईली डेवलप नहीं हो सकते तो कम से कम लीस्ट डेवलप तो ना हो ना, कम से कम मॉडरेटली भी डेवलपमेंट में तो आए। तो अच्छा, मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया कि अगर ये आपको वैल्यूज दिखा दूं, आई डोंट नो पेपर में मैंने वो आई डोंट नो कि लिखा हुआ है, आप इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि इसकी मॉडरेटली हाईली डेवलप्ड की वैल्यूज चेंज होंगी? जी एग्जैक्टली। तो ये जो डाटा है ना, ये 2012 को आपस में कंपेयर कर रहा है। 2012 को की जो वैल्यूज होंगी वो 7 के साथ नहीं कर रहा, तो 2012 के विद इन रिलेटिव ग्रेडिंग है ये। 2, 7 और 12 में नहीं ग्रेडिंग। समझ आ रही है आपको? हाँ आप समझ आ गई, ठीक है, ठीक। हाँ, लेकिन हमने कंपैरिजन के लिए तो हम ये, जब हमने कैटेगरीज बना दी हैं, तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये लीस्ट डेवलप की कैटेगरी में आ रहा है, ये उस कैटेगरी में आ रहा है। सो आई थिंक अगर might have इधर पे नहीं लिखी, ये मेरे ख्याल से नहीं है वैल्यूज। ओके, मैं वैल्यूज आगे जाके आपको आ जाएंगी और पेपर में मैंने एक दो दिखाऊंगा आपको। ओके, सो क्लियर रिजवान? लेट्स मूव यस ऑन। सर। Okay. So according to our analysis, development was decreased from 2002 से 7 में, 2002 से 2007 में कम हुआ था, लेकिन 2007 में 12 में फिर इंक्रीज हो गया। ये साले वाली बात भी पॉइंट आउट होती है, आपकी भी होती है कि पहले तो कम हुआ है, बाद में फिर ज्यादा हो गया। तो इट मीन्स कि हमने 2007 से 12 तक हमने कुछ एरियाज पे फोकस किया था डेवलपमेंट का, बाकी एरियाज को हमने निगलेक्ट किया। वो अगेन हम डाटा से निकाल सकते हैं कौन से एरिया नेग्लेक्ट है और किस इंडिकेटर में नेग्लेक्ट हुए हैं, वो हम डाटा से निकाल सकते हैं।
बट ये ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है, यानी कि ये नहीं हुआ कि 90 से 70%, 90 से 80 पे आ गए हैं, 90 से 91 या 90 से ऊपर ही गए, 90 से नीचे नहीं आए। हर एरिया में डेवलपमेंट ज्यादा हुई है, कम नहीं हुई, विच मीन्स के हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ एरियाज का प्रोग्रेशन रेट बहुत ज्यादा है और कुछ एरिया का प्रोग्रेसिव रेट स्लो है। स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हमारा ट्रेंड ज्यादा है, फोकस्ड। So according to data, urban areas more developed than peri-urban and peri-urban areas more developed than rural. जो कि कहने को तो बात लॉजिकल है, लेकिन हमने उसको एम्पिरिकली वेरीफाई कर लिया है, टेस्ट कर लिया है गवर्नमेंट के डेटा से। तो गवर्नमेंट अगर क्लेम करेगी कि नहीं 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 रूरल में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, तो कहेंगे ये आप ही के डेटा से हमने एनालिसिस किया और आपके डेटा ही हमें बताता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू वेरीफाई योर एनालिसिस, योर लेट्स से क्वालिटेट, ये जो हम बातें करते हैं इसको क्वांटिफाई जब तक नहीं करेंगे तो हमारे पास कम से कम रिसर्च या साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्बन प्लानिंग के डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह नहीं सकते कि जी आप सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, अनलेस वी हैव द डेटा। ओके, दीज ऑल टाउन्स वर हाईएस्ट डेवलपमेंट टाउन्स वर ऑफ लाहौर, ये तीनों लाहौर के हैं, एंड दीज थ्री तहसील्स तीनों रूरल इन नेचर हैं और दीज वर द लीस्ट डेवलप्ड इन दीज एरियाज इन दीज एरिया। मेट्रोपॉलिटन से खाली बात की जाए तो लाहौर वाज ग्रेटर डेवलप्ड देन फैसलाबाद एंड फैसलाबाद ग्रेटर देन गुजरांवाला। सो अब रिकमेंडेशन कि फंडिंग क्राइटेरिया, नाउ दीज आर सम जेनेरिक रिकमेंडेशंस कि ये कर लें तो आपके प्रॉब्लम सही हो जाएंगे। बट आपके जो हम बात करते हैं कि चले हमने ये बात की अर्बन रूरल को किया है, तो लेट्स कंपेयर विद एन अर्बन बात करते हैं कि लाहौर के 5 बड़े शहर हैं, पंजाब के 5 बड़े शहर हैं, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, उसमें अब ये पॉपुलेशन देखें। अब लाहौर की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है इतनी ज्यादा है, तो इट मीन्स के इसके पास जो डेप्रीवेशन होगी या कम लोगों के पास पानी के कनेक्शन, लेट्स से परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच विल नॉट हैव एक्सेस, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, स्प्रेड इतना ज्यादा है, तो हो सकता है कि परसेंटेज ऑफ एक्सेस टू सर्टेन फैसिलिटीज लाहौर में कम हो। ये गैस किया जा सकता है कि अंदाजा कि लाहौर की पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा है, लेकिन लेट्स सी उस लिहाज से हम अगर एनालिसिस करें। ओके, बाय द वे आई फॉरगॉट फ्रॉम वन पॉइंट दिस वन प्रीवियस में जिसमें हमने बात की थी, डज योर सोशियो इकोनॉमिक अफेक्ट और नॉट। सो अकॉर्डिंग टू दिस, जो आपका अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें तो उसका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा असर है। क्लियर? फॉलोड बाय योर लेट्स से दिस वन, पेरी अर्बन। सो पेरी अर्बन और उसके बाद पेरी अर्बन और फिर रूरल। यस, सो अगर एनालिसिस में मैंने एनालिसिस किया तो उससे पता चला कि अर्बन एरियाज में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, और उसकी वैल्यूज ये हैं, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू अर्बन एरियाज की इसकी, फॉलोड बाय पेरी अर्बन एंड रूरल। सो जो हम कहते हैं इंपैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो एहसान ने भी बात की थी अभी, कि yes, it is true, it is logical, but we have now empirically या practically, scientifically ascertained or determined or confirmed that yes, infrastructure development in Lahore city region will impact your socio-economic growth positively. So जितनी अच्छी infrastructure development होगी उतनी अच्छी socio-economic development होगी, लेकिन अर्बन एरियाज में जितनी सबसे ज्यादा जल्दी डेवलपमेंट होगी एज कंपेयर टू पेरी अर्बन एंड रूरल। सो क्लियर दिस पॉइंट, जो हमारा एक पहला ऑब्जेक्टिव हमने बात भी की थी इस पर। एनी क्वेश्चन अबाउट दैट, इंपैक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ? ओके, कमिंग बैक टू दिस केस स्टडी इन विच हम बात करते हैं आपके डिफरेंट अर्बन बड़े शहरों की। तो ये 5 शहर थे और उसमें हम सिर्फ वही इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लेंगे, उसमें हम रोड डेंसिटी भी निकाल देंगे, इसमें हम बेसिक लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, गैस इनपुट है कि नहीं है, एंड देन दिस इज द डेवलपमेंट। अगर हम सिंपल प्लॉट करें ग्राफ्स को तो ये देखें कि ओवर द इयर्स, ओवर द टाइम पीरियड्स,
टेक्निकली तो हमें डेवलपमेंट ट्रेंड ज्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन देखिए इसमें गैप आ रहा है। लाहौर को चेक करें, बाकी एरिया से चेक करें। ओके, सो you can see a variance या difference of gap between Lahore and other areas in terms of different indicators. Like लाहौर में improved sanitation देखा तो हल्का सा इंक्रीज आ रहा है, फैसलाबाद में भी इंक्रीज है, गुजरावाला में, मुल्तान में, रावलपिंडी में भी है। लेकिन देखें लाहौर और मुल्तान में कितना ज्यादा गैप है। हमें 100% चाहिए। अब लाहौर में अगर लाहौर वाले अगर 100% नहीं कर सके, जहां फुल फंडिंग है, सब कुछ है, प्रोविजन है, लोग भी हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंगली या रिलेटिवली मुल्तान उतना दूर है। मुल्तान में मैक्सिमम 70% भी अचीव नहीं हुआ और लाहौर क्लोज टू 100 है, 95% विद रिस्पेक्ट टू सैनिटेशन। कि 95% ऑफ पॉपुलेशन इन लाहौर इज हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी। दिस इज अनदर वे टू डिटरमिन गैप बिटवीन सिटीज। सो हम ये गैप कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं मुल्तान 100 तो नहीं कर सकता, लेकिन मुल्तान 80 तक तो आए, 80 को तो क्रॉस करे या 90 को तो टच करे। So that is inequality, that is disparity. हम इसको कम करना चाहते हैं ताकि बैलेंस डेवलपमेंट हो। Clear? Any point, anything to argue or comment, suggestions? Okay, I'll flash through these. I'll just go straight to the maps. So this is within Lahore. Within Lahore को देखा जाए तो लाहौर को देखें, लाहौर के भी कुछ एरियाज हैं जो कम डेवलप्ड है। हम ओवरऑल लाहौर की पहले बात कर रहे थे, ओवरऑल लाहौर को कंपेयर कर रहे थे मुल्तान के साथ, लेकिन अगर विदन लाहौर भी चेक करें तो हमें पता चल जाएगा अच्छा तो समनाबाद, गुलबर्ग इसकी ऑलमोस्ट 1 वैल्यूज हैं, बाकियों की कम है। सिमिलरली अगर हम इस पे आपस में विदन कंपैरिजन फैसलाबाद का करें, अनदर गैप क्लियर। तो ये भी हमें विदन अर्बन एरियाज के भी अंदर हमें गैप पता चलते हैं। विदन गुजरावाला, अब यहां से मुझे लग रहा है फैसलाबाद के अंदर बहुत गैप है। अब यहाँ आपको लग रहा है, यहाँ लेट्स से लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में रिलेटिवली ठीक है, डेवलपमेंट ट्रेंड भी ज्यादा है, लेकिन डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा नहीं। लेकिन फैसलाबाद में विद इन फैसलाबाद डिस्पैरिटी एग्जिस्ट कर रही है बहुत ज्यादा। इसी तरह गुजरावाला का विद इन डिस्पैरिटी इतनी खास एग्जिस्ट नहीं कर रही कंपैरेटिवली, हम उसको आपस में कंपेयर करें। हाँ, मुल्तान में कर रही है। This is Rawalpindi, so that is 2007 and 12 के maps, more or less same. मरी थोड़ा सा और डेवलप्ड हो गया as compared to 2002. This is again graphs. So हम इधर बात करते हैं, जिस तरह पहले भी हमने बात की डिक्लाइनिंग या प्रोग्रेसिव नेचर। सो लाहौर के देखें कि वो हमेशा प्रोग्रेसिव ही गया, जितनी उसकी डेवलपमेंट थी हमेशा उससे आगे गया। अगर 90 था तो 91% पे गया, 91 था तो 92 पे गया। फैसलाबाद में देखें सिर्फ 4 टाउन्स पॉजिटिव गए हैं, एक कांस्टेंट रहे और 3 डिक्लाइन कर गए। पहले 80-90% था, लेट्स से 70% था, अब वो कम रह गए, वो 69-68 पे चले गए। पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है लेकिन उनकी फैसिलिटी उस लिहाज से इंक्रीज नहीं की, सो डिक्लाइनिंग मोड में है। गुजरावाला 4 आर प्रोग्रेसिव, 3 आर डिक्लाइनिंग। मुल्तान में 4 आर प्रोग्रेसिव, 2 आर डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो ये विदन भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, विदन डिस्ट्रिक्ट्स, विदन अ सिटी। ये तहसील की और टाउन्स की बात कर रहे हैं। जो अर्बन एरियाज में जो तहसीलें होती हैं आमतौर पर उसको टाउन्स कहते हैं। एनी क्वेश्चन? गैप, तो सब डिफरेंट रिजल्ट्स हम उसको डेटा को देख के निकाल सकते हैं। यस रिदा? सर ये लास्ट पॉइंट रिपीट कर देंगे? कौन सा? डिक्लाइनिंग वाला? जी जी। ओके, सो प्रोग्रेसिव नेचर होता है, हमने 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया। लेट्स से कि लाहौर के 10 टाउन्स हैं, लाहौर के टोटल 10 टाउन्स हैं। आप बल्कि यहाँ से भी आपको मैं दिखाऊं, अगर ये लाहौर के टाउन्स हैं तो लाहौर, आपको हल्का सा ग्रे नजर आ रहा है रिदा? ग्रे लाइन दैट इज रिप्रेजेंटिंग 2007। यस सर। दिस वन, ग्रे वन। तो अगर देखें 2007 से आगे डेवलप हुए हैं, पीछे नहीं गए।
ठीक है। सो वी आर सेइंग दैट डिफरेंट टाउन्स, लाहौर के 10 जो टाउन्स हैं उनमें डेवलपमेंट पॉजिटिव हुई है, कम नहीं हुई, ज्यादा हुई है। परसेंटेज वो 1 के करीब है, दूर नहीं गए, आइडियल वैल्यू को करीब ही है। लेकिन कंपैरिजन टू हम ये बात करें लाइक ये देखें इकबाल टाउन इन फैसलाबाद 2007 में वो .4 के पास था और 2012 में वो 0.2 के पास चला गया। सो ये क्या हो गया, ये डिक्लाइन कर गया। यहां इंक्रीज है, यहां भी इंक्रीज है, यहां डिक्लाइन है। देखें ये में भी कांस्टेंट है, ओके, ये कांस्टेंट्स है, ये ना ज्यादा हुआ है ना कम हुआ है। लेकिन बाकी लोग की पॉपुलेशन फैल गई है, ज्यादा हो गई है, लेकिन उनको उस तरह से फैसिलिटीज नहीं मिली। सो इसको हम डिक्लाइनिंग, प्रोग्रेसिव डिक्लाइनिंग या कांस्टेंट में लेके आते हैं। तो उसको हम अगर मैं जिस सिर्फ क्वांटिफाई करूं या उसको सिर्फ ग्रुप बताऊं तो उसका ये है कि प्रोग्रेसिव लाहौर के 10 टाउन्स थे, 10 के 10 प्रोग्रेसिव थे। फैसलाबाद के 8 टाउन्स हैं, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के, तो उसके 8 में से 4 प्रोग्रेसिव है, 1 कांस्टेंट है, 3 डिक्लाइनिंग फेज में, के बजाय कि उसमें गैप कम हो, उनमें डेवलपमेंट लेवल कम होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से गैप इनहैंस होता जाएगा। तो अगर लाहौर हमेशा से हमेशा प्रोग्रेसिव ही रहेगा और बाकी लोग प्रोग्रेसिव में नहीं आएंगे तो ये गैप बढ़ता जाएगा। सो आर यू क्लियर दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Some recommendation वो I'll share you the presentation, उसमें से आप देख सकते हैं कि किस एरिया उसमें like for example कोटली सतनिया रावलपिंडी में I think right accessibility of gas was 0% कि पूरी तहसील में, पूरे सब डिस्ट्रिक्ट में as of 2000 कौन सा डेटा ये I think it was जो भी है डाटा कि एक खास पीरियड में 0% लोगों को गैस थी नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, सब डिस्ट्रिक्ट में। सो ये देखें, ये गैप है। और उसी लिहाज से अगर हम लाहौर से कंपैरिजन करें, लाहौर को अगर एक एरिया में 90% मिल रही है लोगों को और एक तहसील में 0% को मिल रही है, तो देखें गैप कितना ज्यादा है। सो हम इस गैप को कम करना चाहते हैं, दैट इज डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी, डेवलपमेंट गैप। सम अदर केस स्टडी आई जस्ट विजुअलाइज यू कि आप अगर लाहौर की खाली बात करें तो लाहौर के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, रिलेशनशिप्स, एनवायरनमेंट, तो उस लिहाज से इसके अंदर भी डिस्पैरिटी है, शहर के अंदर भी डिस्पैरिटी। हम क्या पहले प्रोविंशियल भी एनालिसिस कर सकते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी एनालिसिस कर सकते हैं, हम विद इन सिटीज भी कर सकते हैं, या और विद इन सिटी से मुराद 4-5 अर्बन सिटीज की आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, या ओके वी कैन आल्सो डू इंटरसिटी एंड इंट्रा-सिटी एनालिसिस एज वेल, विद इन सिटी एंड बिटवीन सिटीज। सो दिस इज विद इन अ सिटी अर्बन। तो इसमें भी देखें डिस्पैरिटी एग्जिस्ट कर रही है आपके लाहौर में। इन टर्म्स ऑफ अर्बन डिप्रीवेशन और पंजाब की बात करें तो आपको पता चल जाती है डिप्रीवेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू हाउसिंग फैसिलिटीज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये भी आपको एक मैसेज दे रहा है। नाउ दिस इज डिस्ट्रिक्ट वाइड एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस में हम कहते हैं ये क्यों नहीं किया, इस तरह के एनालिसिस में आप देखें अर्बन और रूरल का मकसद खत्म हो जाता है। तो जब मैं एनालिसिस करूंगा तो मैं कहूंगा अच्छा ये लेट्स से खाने वाली या जंग, ये अगर मॉडरेटली डेवलप्ड है तो क्या पता इसमें से कोई अर्बन एरिया, इसका जंग का अर्बन एरिया हाई डेवलप में हो। तो हम जब पूरे डिस्ट्रिक्ट को विदाउट कंसिडरिंग अर्बन एंड रूरल एरिया जब हम मर्ज कर देते हैं तो हम एनालाइज नहीं कर सकते। प्रीवियस एनालिसिस में हमने देखे, मैंने अर्बन, पेरी अर्बन और रूरल को क्लासिफाई किया हुआ था, तो उसमें हम क्लासिफिकेशन से एनालिसिस कर सकते थे कि रूरल का रूरल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन रूरल को अर्बन के साथ नहीं कर सकते। सो अगर डिस्ट्रिक्ट करता है तो हम बहुत ज्यादा चीजें इसमें मर्ज कर जाते हैं। तो इस तरह का एनालिसिस पर्सनली आई डोंट लाइक इट, बिकॉज इससे हमें कुछ खास पता नहीं चलता कि ऑफ कोर्स ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू तो पता चल जाती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज्यादा आपके सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अर्बन एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, पेरी अर्बन एरियाज हैं, तो उसमें डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन इट माइट वेरी। सो दिस इज डिप्रीविएशन, दिस इज एक्सक्लूजन का डाटा देखें। अब एक्सक्लूजन देखें, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, कल्चरल एक्सक्लूजन और सोशल सर्विसेज। एक्सक्लूजन का मतलब है फैसिलिटी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन आपको नहीं मिल रही। So, उसमें देखें लाहौर इज सोशल एक्सक्लूजन में सबसे ज्यादा टॉप पे है।
बैंक्स पर पॉपुलेशन अवेलेबल है, लेट्स से इकोनॉमिक एक्सक्लूजन की बात करता हूँ, बैंक्स पर पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन बैंक्स अकाउंट्स पर पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहे, दैट इज इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। बैंक्स पर पॉपुलेशन है लेकिन अकाउंट्स पर पॉपुलेशन कम है, सो दैट इज एक्सक्लूजन। सो एक्सक्लूजन से भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। सो दिस इज some case studies which have I've elaborated and discussed about development gaps between certain areas. और development gaps क्यों जरूरी हैं? Why are we doing it? Because we want to compare it and we want to achieve a sustainable. हम जिस sustainability की बात करते हैं तो हम एक ही एरिया को अगर डेवलप करते रहेंगे तो आपका मुल्क कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगा। एक ही एरिया को डेवलप करें, हमने पूरे मुल्क को लेके आगे चलना है, पूरे रीजन को लेके आगे लेके जाना है। So, किसी को हम एक्सक्लूड करेंगे, किसी को लीव बिहाइंड करेंगे, that will not be sustainable, that will not be termed as sustainable in the long term. So yes, any question before I finish this lecture? Anything to add? Yes, Samad. सर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था सर, कि मेरे कुछ दोस्तों ने इसी टॉपिक पे रिसर्च किया था ना पिछले साल 2019 में बैचलर्स यूटी लाहौर में। तो उनका टॉपिक भी यही था कि सर इम्पैक्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन सोशियो इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने लाहौर के अंदर 2 केस स्टडीज लिए थे टाउन, एक जौहर टाउन था और एक शालीमार टाउन था। तो इसी तरह उन्होंने कुछ इंडिकेटर सिलेक्ट किए थे, हेल्थ हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इस तरह से टेलीकम्युनिकेशन। और इनकी फाइंडिंग्स सर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो उन्होंने ये फाइंडिंग्स बताया कि जो जौहर टाउन है वो सर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बेहतर थी, तो इस वजह से वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है या ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वहाँ पे बेहतर है। तो क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट बेहतर है तो फिर उन्होंने ये फाइंडिंग्स बताई थी कि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है या जो फंडिंग है वो वहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शालीमार टाउन। जबकि शालीमार टाउन में थोड़ी सी डिस्पैरिटी थी और इसकी मेन वजह ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी। ओके, सो विद इन, जिस तरह मैं विद इन सिटी बात कर रहा हूँ, ये बिटवीन इवन छोटे छोटे टाउन लेवल पे भी हम जाके एनालिसिस कर सकते हैं। देख, और एनालिसिस के लेवल है ना, फिर हम हाउस होल्ड लेवल भी ले सकते हैं, कम्युनिटी लेवल ले सकते हैं, टाउन लेवल ले सकते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल, प्रोविंस लेवल, नेशनल लेवल। सो ये हमारे पास डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है। सो जितना हम एनालिसिस में हम डेप्थ में जाएंगे उतने अच्छा हम एनालाइज कर सकते हैं व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम, what is the critical indicator which needs to be resolved for certain area to improve the overall development of the area or reduce the development gap. So again, any question? No? Okay, so thank you. I'll stop the recording now. Thank you very much.